3 title Inorganic Chemistry 1 Stereochemistry Metal Ligand Equilibria and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex. Module number 23 title Mechanism of the Substitution Reactions. Table of Content, Learning Outcome, Introductions, Mechanism of the substitution reaction in octahedral complex, type of intermediate SN1 reaction, SN2 reaction summary. Learning outcome. After studying this module you will be able to understand. ये मॉड्यूल सीखने के बाद आप क्या समझेंगे? थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म थ्योरी. बेसिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक. SN1 टाइप मैकेनिज्म, SN2 टाइप मैकेनिज्म एंड इंटरचेंज मैकेनिज्म. SN1 टाइप मैकेनिज्म, SN2 टाइप मैकेनिज्म्स और इंटरचेंज मैकेनिज्म्स. Factor affecting mechanisms of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction का factor affecting mechanisms. Reaction intermediate involved in the course of reactions. reaction जिसमें reaction intermediate involved है. Introductions. Pathway of a chemical reaction is far more important than the structure of reactant and product itself. केमिकल रिएक्शन का पाथवे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर से. इन द इनिशियल डे ऑफ केमिस्ट्री डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड वाज प्रिडिक्टिव विद स्मॉल नंबर ऑफ अवेलेबल कैरेक्टराइजेशन टूल्स. केमिस्ट्री के शुरुआती दिनों में कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना और काफ़ी प्रेडिक्टिव था क्योंकि उसका कैरेक्टराइजेशन टूल भी छोटे से नंबर में था. Only through reaction condition and output, no one was able to draw mechanism of the reactions. तो reaction condition और output की वजह से कोई भी reaction का mechanism बना नहीं सकता था. So reaction condition, synthetic output, possible side products, possible environmental harm, etc. could not be predicted. तो इसीलिए reaction condition, synthetic output, possible side products, possible environmental harms ये भी predict नहीं कर सकते हैं. Clarity of mechanism of reaction help to understand electronic structure of reactant and product and their interactions. Reaction का mechanisms का clarity help करता है reactant का electronic structure समझने में, product का electronic structure समझने में और उनका interactions. A mechanism also help to predict about the synthetic methodology for new reaction and overall control of the reactions. तो मैकेनिज्म जो है हेल्प करता है नए रिएक्शन के लिए सिंथेटिक मेथोडोलॉजी बनाने के लिए और रिएक्शन का ओवरऑल कंट्रोल. इन दिस मॉड्यूल वी विल ओनली लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस मॉड्यूल में सिर्फ हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखेंगे. मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूटिव रिएक्शन का मैकेनिज्म. In a metallic complex, metal ion act as a point positive charge or positive dipole and ligand show character of point negative charge or dipole. Metallic complex में metal ion जो है point positive charge या फिर positive dipole और ligand जो point negative charge या फिर dipole दिखाता है. By this way, the reaction of coordination compound can be predicted by ionic interaction between metal and ligand. इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिएक्शन जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेटल और लिगैंड का आयनिक इंटरेक्शन की वजह से. Substitution reaction are those reaction in which an attacking ligand replace previously attached ligand to substrate. Substitution reaction ये ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे लिगैंड अटैक करता है और सबस्ट्रेट जहाँ पे लिगैंड अटैक करता है और पहला सबस्ट्रेट के साथ जो पहला वाला लिगैंड है उसके ऊपर अटैक करता है दूसरा लिगैंड और रिप्लेस करता है उसको. द लिगैंड दैट डिपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप. वो लिगैंड जो कॉम्प्लेक्स से चला जाता है
उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, एंड द ग्रुप विच टेक्स द पोजिशन ऑफ लिविंग ग्रुप इज कॉल्ड अटैकिंग और सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप। और वो लिगैंड का ग्रुप जो लिविंग ग्रुप की जगह ले लेता है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके उस लिविंग ग्रुप का पोजीशन ले लेता है, उसको बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप या फिर सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप। 3.2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व सप्लीमेंट ऑफ वन लिगैंड बाय अदर। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में एक लिगैंड से ज़्यादा सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व होता है। सिंस लिगैंड कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज और डाइपोल, दे अब्ज्यूम टू हैव न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। वैसे भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो है उसको, वैसे भी लिगैंड जो है उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव डाइपोल के जैसा ट्रीट करते हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाता है। Therefore, the substitution reaction that result by replacement of one ligand by other is called nucleophilic substitution reaction. For example, substitution reaction जो है वो एक ligand का replacement की वजह से होता है, दूसरे की वजह से, उसको बोलते हैं nucleophilic substitution reaction. For example, MX6 रिएक्ट करता है Y के साथ ताकि MX5 Y फॉर्म हो सके और X निकलता है, तो X लिविंग ग्रुप है, Y जो है अटैकिंग ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। The attacking ligand can attack on substrate MX6 by several ways to produce MX5Y. तो इधर अटैकिंग लिगैंड जो है सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं MX6 में बहुत सारे तरीके से ताकि MX5Y प्रोड्यूस हो सके। Therefore, we can have several mechanisms by which this type of reaction may occur, but we will consider 4 broad type of mechanism. वैसे भी ये जो बहुत सारे mechanism जो है मतलब इस टाइप का जो रिएक्शन जो है हमेशा ऐसा सब मैकेनिज़्म होता ही है, लेकिन हम मैकेनिज़्म का चार ब्रॉड टाइप कंसिडर करेंगे। पहला, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज़म्स। SN1 जिसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर डिसोसिएटिव SN1 mechanism. Second, biomolecular nucleophilic substitution SN2 और associative SN2 mechanism. SN2 का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स है, दो रिएक्टेंट है, तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर associative SN2 mechanism. Third, interchange reaction. Dissociative nucleophilic substitution reactions ID and associative nucleophilic substitution reaction IA. इंटरचेंज रिएक्शन में डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फर्स्ट, SN1 mechanism. This mechanism involves two-step process. The first step includes slow heterolysis of metal leaving groups to produce a 5-coordinated intermediate. तो SN1 mechanism में क्या होता है, इस mechanism में 2 स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पहला स्टेप में मेटल लिविंग ग्रुप का स्लो हेट्रोलाइसिस होता है जो 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है। which rapidly undergo combination with nucleophile in the second step, जो second step में nucleophile के साथ combine होता है। So complex first undergo dissociation and loses a ligand to produce a 5 coordinated square pyramid or trigonal bipyramidal intermediate complex. तो कॉम्प्लेक्स जो है पहला डिसोसिएशन में चला जाता है, लिगैंड को यूज़ करते हैं ताकि 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर पिरामिड प्रोड्यूस कर सके या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर सके। इंक्लूजन ऑफ न्यू लिगैंड Y ऑन इट अगेन प्रोड्यूसेस 6 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज। न्यू लिगैंड Y आने की वजह से 6 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज फॉर्म होता है। MX6 लो होता है, MX5 लिविंग ग्रुप X चला जाता है, MX5 रिएक्ट करता है Y के साथ, Y जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, फास्ट रिएक्शन होता है MX5Y. So the first step is slow and the second step is fast. The rate of the reaction depend on slow steps and given as. तो पहला स्टेप जो है बहुत ही स्लो है, सेकेंड स्टेप जो है फास्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड होता है स्लो स्टेप्स के ऊपर। The rate is equal to K mx6.
where K is the rate constant forward reaction, and in step 1, hence SN1 mechanism first order reactions. That is, when we consider its kinetic aspects, we can call it unimolecular. K जो है रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का स्टेप 1, और SN1 मैकेनिज्म जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. इसका मतलब ये है काइनेटिक्स, एज पर काइनेटिक्स देखा जाएगा तो उसमें यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, मतलब एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. मतलब ये जो SN1 मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड, उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो डिपेंड होता है सिर्फ एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इसलिए यूनिमोलिकुलर है और इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. द पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 मैकेनिज्म बिकॉज इट हेल्प इन आयनाइजेशन. पोलर सॉल्वेंट जो है SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है क्योंकि पोलर सॉल्वेंट हेल्प करता है आयनाइजेशन में. It also been observed that low concentration of nucleophile as well as weak nucleophile also favor SN1 mechanism. यहाँ तक ये भी ऑब्जर्व किया है कि न्यूक्लियोफाइल का कम कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ तक वीक न्यूक्लियोफाइल भी SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है. SN2 mechanism. It is one step process and suppression of halide ions and attacks of nucleophile both occur simultaneously. SN2 mechanism में क्या होता है, ये एक स्टेप प्रोसेस है. यहाँ पे halide ions और nucleophile का अटैक ये दोनों भी होता है एक साथ. In this mechanism, new ligand first add on to the complex to form 7 coordinated activated complex. इस मैकेनिज्म में नया लिगैंड को पहले ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्स में ताकि वो कॉम्प्लेक्स जो है और कॉम्प्लेक्स जो है 7 कोऑर्डिनेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहता है या फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रहता है जो एसोसिएशन में चला जाता है. तो इधर लिगैंड का अटैक भी होता है और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल हाइलाइड आयन भी सेपरेट होता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक होता है. MX6 react with Y slow. MX5Y 7 coordinate intermediate form होता है. MX6Y 7 coordinate fast reaction में MX5Y और X चला जाता है as a living group. So this is also a two-step process. In this case, the reaction rate depend upon the first step, that is upon the concentration of the complex of well as the concentration of incoming ligand Y. तो ये दो स्टेप प्रोसेस है जहाँ पर इस रिएक्शन के केस में रेट डिपेंड होता है फर्स्ट स्टेप में, तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है और लिगैंड का Y का कॉन्सेंट्रेशन भी, तो रेट KMX6Y. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड होता है फर्स्ट स्टेप में, that is upon the concentration complex of well as the concentration of the incoming ligand Y. तो ये जो पहला स्टेप जो है स्लो प्रोसेस है, तो वापस इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN2 का वो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड है. Hence SN2 mechanism is सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड इज बायोमोलिकुलर. इसीलिए SN2 रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एज पर काइनेटिक्स और बायोमोलिकुलर है क्योंकि दो रिएक्टर इसमें इन्वॉल्व रहता है, एक कॉम्प्लेक्स दूसरा है अटैकिंग ग्रुप. However, when solvent itself act as nucleophile, for example water, alcohol, etc., and the reaction show first order behavior. लेकिन सॉल्वेंट अगर खुद न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि वाटर, अल्कोहल, और रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर दिखाता है. नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म. नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है. इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व द हायर कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म. ये यहाँ तक ये भी ऑब्जर्व किया है कि न्यूक्लियोफाइल का हाई कॉन्सेंट्रेशन SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है. So in between the two extreme of nucleophilic substitution reaction that are dissociative and associative, nucleophile substitution and interchain mechanism exist. तो nucleophile substitution reaction जो है उनके बीच में दो एक्सट्रीम है, एक associative nucleophilic substitution है, दूसरा dissociative nucleophilic substitution है, एक associative nucleophilic substitution है. ठीक है, और इनका इंटरचेंज मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है.
Interchange reactions. Interchange reactions. Ligand first attack to the substrate and form ion pair before breaking off living group from metal complex species. अगर लिगैंड जो है पहले अटैक करता है सबस्ट्रेट में और आयन पेयर फॉर्म करता है लिविंग ग्रुप ब्रेक होने से पहले मेटल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज से, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एन इंटरचेंज रिएक्शन. तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इंटरचेंज रिएक्शन. इफ डिग्री ऑफ assistance of nucleophile is small and reaction primarily undergo dissociation pathway, then the reaction is called dissociative interchange ID. अगर न्यूक्लियोफाइल का असिस्टेंस का डिग्री छोटा रहता है तो रिएक्शन जो है डिसोसिएशन पाथवे में चला जाता है. तो ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं डिसोसिएशन इंटरचेंज आईडी. while if reaction is more tilted towards association reaction, the reaction is called associative interchange reaction IA. अगर रिएक्शन जो है ज़्यादा किसकी तरफ है, एसोसिएशन रिएक्शन की तरफ, तो रिएक्शन को बोलते हैं एसोसिएटिव इंटरचेंज रिएक्शन IA. MX6 रिएक्ट करते Y के साथ ताकि X5 MXY फॉर्म हो सके. टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन. तो इस टाइप का इंटरमीडिएट जो है SN1 और SN2 रिएक्शन के वक्त फॉर्म होता है. SN1 रिएक्शंस. In SN1 mechanism, two type of intermediate can be formed. SN1 mechanism में दो टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. फर्स्ट, the bond MX dissociate causing least disturbance to the remaining 5 coordinated intermediate which has a square pyramidal geometry. MX का बॉन्ड डिसोसिएट होता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है. बचा हुआ 5 कॉर्नर इंटरमीडिएट रहता है जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाता है. द इंटरमीडिएट XY is then attacked by Y to produce MX5Y as shown below. तो MX5 का इंटरमीडिएट अटैक होता है Y की वजह से ताकि MX5Y फॉर्म हो सके. तो यहाँ पे MX6 लो रहता है, वहाँ पे X निकल जाता है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. फिर बाद में Y अटैकिंग ग्रुप आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है. फास्ट रिएक्शन में MX5Y फॉर्म होता है. द बॉन्ड MX dissociate and the remaining MX5 immediately adjust the bond angle to produce a trigonal bipyramidal intermediate which is then attached by Y to produce MX5Y as given below. तो MX का बॉन्ड डिसोसिएट होता है और MX5 रह जाता है. फिर इमीडिएटली बॉन्ड एंगल एडजस्ट होता है जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट जो है प्रोड्यूस होता है. कैसे प्रोड्यूस होता है, जब Y एज ए अटैक ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है अटैच होता है MX5Y से, MX5 से, और MX5Y प्रोड्यूस होता है और ट्राइगोनल पिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. The trigonal bipyramidal needs increment of 2 bond, whereas no such movement is required during the formation of SP intermediate. Hence, square pyramidal intermediate is generally formed in SN1 mechanism. अच्छा, जो पहला वाला था उसमें पहले X जाता है और Y आता है और स्क्वायर पिरामिडल था. ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है. तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट के लिए 2 बॉन्ड इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं रहता है स्क्वायर पिरामिडल को फॉर्मेशन में. अच्छा, स्क्वायर पिरामिडल में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मूवमेंट होता है. तो स्क्वायर पिरामिडल जो है वो SN1 मैकेनिज्म की वजह से फॉर्म होता है. However, SN1 reaction proceed to trigonal bipyramidal intermediate where formation of pi bond is possible. Trigonal bipyramidal intermediate SN1 reaction की वजह से फॉर्म होता है लेकिन उसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनने का पॉसिबल है. SN2 reaction. In SN2 mechanism, 2 type of intermediate can be formed. The nucleophile Y attack on the one of the edge of the octahedron forming a pentagonal bipyramidal PBB intermediate as shown below.
तो न्यूक्लियोफाइल वाई अटैक करता है ऑक्टाहेड्रन को एक एज में ताकि पेंटागन और बायोपिरामिडल फॉर्म हो सके। पीपीबी इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। पेंटागन और बायोपिरामिडल इंटरमीडिएट जो है SN2 रिएक्शन की वजह से होता है। यहाँ पर पहले अटैकिंग ग्रुप पहले अटैक करता है, पेंटागन और बायोपिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो MX6Y7 कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है और फिर लिविंग ग्रुप जो है फास्ट रिएक्शन की वजह से चला जाता है और MX5Y फॉर्म होता है। The nucleophile Y attack through the middle of one of the triangular face of the octahedron, forming a octahedral wedge intermediate in which both attacking group Y and living group X are present in equivalent position as shown below. nucleophile Y attack होता है ट्रायंगुलर ऑक्टाहेड्रॉन का ट्रायंगुलर फेस के मिडल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और ये दोनों भी अटैकिंग वाई ग्रुप और लिविंग ग्रुप एक्स प्रेजेंट होता है इक्विवेलेंट पोजीशन में। तो MX6 अटैक होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाई की वजह से ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फास्ट रिएक्शन की वजह से एक्स निकलता है और MX6Y फॉर्म होता है। तो फिर पेंटागन बायोपिरामिडल को मोमेंट की ज़रूरत पड़ती है 4 लिगैंड का ताकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अंदर आ सके। उसकी वजह से पेंटागन बायोपिरामिडल इंटरमीडिएट के लिए एनर्जी इंक्रीज होता है, ऑक्टाहेड्रल वेज के लिए मिनिमम मोमेंट की ज़रूरत है लिगैंड के लिए, तो इसीलिए लिगैंड का रिपल्शन जो है काफ़ी कम है ऑक्टाहेड्रल वेज में कंपेयर टू पेंटागन और बायोपिरामिडल से। इसे दिस इंडिकेट द SN2 रिएक्शन प्रेफरली प्रोसीड बाय ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट जो है वो SN2 रिएक्शंस दिखाता है। Factor affecting mechanism nucleophilic substitution reaction. Substrate का effect with increase of positive charge on the substrate metal living group. Bond strength also increase and therefore before breaking of living group, incoming group attack over the substrate that support SN2 mechanisms. तो substrate पर जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, मेटल लिविंग ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है और लिविंग ग्रुप ब्रेक होने से पहले इनकमिंग ग्रुप अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर और SN2 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। सिमिलरली छोटा सा आयोनिक रेडियाई जो है मेटल आयन का सपोर्ट करता है SN2 मैकेनिज्म को और हाई स्टेरिक क्राउडिंग को सपोर्ट करता है और हाई स्टेरिक क्राउडिंग जो है SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल. The rate of nucleophile substitution remain unaffected by presence of nucleophile in the case of dissociative nucleophile substitution reaction. तो nucleophile substitution का जो रेट जो है unaffected रहता है nucleophile के प्रेजेंस से। तो इस केस में dissociative nucleophile substitution reaction के केस में so increase in concentration of nucleophile or increase in nucleophile strength do not affect the rate of SN1 reaction. तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है या फिर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है तो SN1 रिएक्शन के रेट में असर नहीं करता। ऑन द अदर हैंड विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इंक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस। दूसरे हाथ में न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या फिर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ में बढ़ता है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। So this can be a tool of to differentiate SN1 और SN2 reaction. तो ये जो effective nucleophile जो है उसको एक टूल की जैसे यूज़ कर सकते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन को फ़र्क समझने के लिए। The effect of living group. A better living group prefer unimolecular nucleophile फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है बिकॉज बिफोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप हैज़ टेंडेंसी टू ब्रेक इटसेल्फ फ्रॉम सबस्ट्रेट, क्योंकि लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी ऐसा है कि वो सबस्ट्रेट से बॉन्ड को तोड़ता है
ठीक है, जब भी न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप उस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप उस पर अटैक करने से पहले सबस्ट्रेट के साथ उसका बॉन्ड टूट जाता है लिविंग ग्रुप का, इसलिए वो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का अटैक होना एक साथ नहीं होता है एक ही टाइम पे। तो लिविंग ग्रुप जो है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। द इफेक्ट ऑफ मीडियम, अ पोलर सॉल्वेंट हेल्प टू ब्रेक लिविंग ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड देयरफॉर सपोर्ट SN1 मैकेनिज्म। अगर सॉल्वेंट पोलर रहेगा तो हेल्प करेगा लिविंग ग्रुप को सबस्ट्रेट से ब्रेक होने के लिए, और इसलिए SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा। वाइल नॉन पोलर सॉल्वेंट और विदाउट प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट रिएक्शन प्रेफर मैकेनिज्म, लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा या फिर बिना सॉल्वेंट के रिएक्शन होगा तो ऐसा इस टाइप का रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म्स प्रेफर करेगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म दो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है सबस्ट्रेट और substituent groups. Summary: the reaction in inorganic chemistry are ionic in nature and a mechanism involving the reaction coordination complex has substitution reaction and electron transfer reaction. Inorganic chemistry के reactions जो है आयोनिक रहता है नेचर में, और मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व रहता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता है SN रिएक्शन, या तो SN1 मैकेनिज्म या फिर SN2 मैकेनिज्म। द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म इन SN1 मैकेनिज्म आर स्क्वायर पिरामिड SP इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है SN1 मैकेनिज्म में वो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट रहते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म में के रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट रहता है स्क्वायर पिरामिडल रहता है। द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म इन SN2 मैकेनिज्म इज ऑक्टाहेड्रल वेज पॉइंट OW इंटरमीडिएट। तो SN2 मैकेनिज्म में इस टाइप के रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट होता है।